ਨਿਕਲੇਗੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੱਸ ਹੁਣ ਹੱਸ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੂੰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ। ਹਸਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗੰਭੀਰ। ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਹਾਸੇ ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਬ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ खोलन गया है तू यार बस आपको पता था मैं किसी से बात कर रहा हूँ, पता तो आपको सारा ही था। बात कर रहा हूँ ठीक है सही है ते मतलब अदा की मतलब अस्सी कोई मना किया है उन्होंने नहीं, मना किया नहीं, किसी ने मना किया किसी ने मना नहीं किया वो मुझे, लेकिन बात ये थी कि एक इंसान के मतलब घर में कोई मसला था वो आ गया तो मैं उसे अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ। हैं क्यों है की कह रहे हैं ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਖੋਲੀ। नहीं ये गल नहीं समझ आई मैनू की कह रहा है कि बकवास कर रहा है दोबारा कह मैंने कहा वो घर से आ गई थी तो फोन ये अच्छा उसमें फोन किया कि मैं इधर आओ मैं इधर हूँ। मेरी 2 घंटे पहले सही बात हुई थी, मतलब उनके मतलब उसकी फैमिली को पता, उसके भाई को पता चल गया था तो उसने मेरे भाई को पता चल गया मैं आ गई मैंने नहीं वापस जाना तो मुझसे निकाह करो तो फिर मैंने कर लिया। किन्ने महीने हो गए गल करदे हो गए 5-6 महीने। ते 5-6 महीने च निकाह कर लेना सी जिंदगी तो अज तक सीखा कुछ नहीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ अदी मां नू पता ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ? ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ हाँ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਹੈ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਡਮੂ ਕੀ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਕਰਦਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਡਰਾਮੇ ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ यार निकाह किया सही बता रहा हूँ आपको, वो दोस्त मेरा उसके घर 2 दिन रखा हुआ था। 2 दिन तो रखे ही हाँ जी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करता अब तेरा दिमाग खराब है पागल है तू ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ नहीं ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ वो बस ਪਤਾ हो ਨਹੀਂ गई ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ गलती। ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਫੇਰ नहीं वो उसने बयान दे दिया वो ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆ ਹੁਆ कोर्ट में। ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ नहीं है तू केड़े कोर्ट से मैरिज करके आया वकील के साथ ही गया था। ओ भाई अब इसकी वक़्त नहीं है आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है खत्म हो गया ये मामले अगर उनकी फैमिली क्लेम कर दे फिर क्या करेगा वो साथ देगी मेरा। ते जो साथ ना दी ताले छितर कल्ले ही खाएगा मैं जिन्नीगा नहीं देगी वो साथ। ਕੱਲੇ छितर कदी वेख्या ही ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं नहीं वेख्या ना एक छितर बना पप्पा जी याद आए ना तेनू ਪਪਾ ਯਾਦ ਆਗੇ ਚਾਚੇ ਯਾਦ ਆਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। चाचे नहीं याद आते चाचे दी उम्र नहीं कि छितर खान दी भाई सीधी साफ कर लेगी ਖਾ ਲੇਗਾ ਚਿੱਤਰ नहीं क्यों मैंने कहा वो मेरे साथ है। ਬੇਟਾ ਜਬ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਸੀ ਸਾਰੇ हाँ जी सारा पता, क्या पता सारा मैंने अपना बताया वो की बताया है कि मतलब जिस तरह मेरा ब्रेकअप हुआ क्या नहीं हुआ सारा मैंने उसे पहले ਮੈਨੂੰ बताया। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ की
ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ 2-4 ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਮਾਰਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ- ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਚਲੋ ਭੈਣ? ਮੈਡਮ ਯਾਸਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? अब आप लोग चलो, मैं सब मैं से मनाओ, मैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ, यार, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਡਬੋਤਾ। तो फिर मैं क्या करूं? ਤੂੰ ਚੁੰਦਾ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰ ਚੜੀ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ? मैंने करना नहीं था यार, वो आ गई थी, उन्होंने नहीं करना था ਕੌਣ ਆ ਗਈ ਸੀ? ये। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। नहीं, अब किसी और के साथ थोड़ी बात करनी मैं। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਫੇਰ। हाँ। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा तो ऐसा होता है कि नहीं होता? अदर अदर पूछ लेने, ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता, जया हो ऐसा गया। हो सकता है? मेरी गल सुनो, जया हो गया है तो हाँ कुछ जी। भी हो सकता, फिर? कुछ भी हो सकता। मैं ਉਹ ते ਕਿਸਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਬਕਾਵੇ ਚ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਇੱਕੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ। फिर क्या कर लेना। नहीं बेखो, क्या हो गया आपको? इसको तो हर 6 महीने बाद हो जाता है किसी ना किसी से, तो फिर क्या करोगे? अब जो होना था हो गया। हैं? उन्होंने भी पढ़ाया है, अब जो होना था हो गया। बड़ा पक्का करके दे। वो जो अंडा बड़ा कदम उन्हें चुक लिया, तो उन्हें भी चुक लिया कदम। वो मेरे कन्ना से सीढ़ियां बजना शुरू हो गई शी। तो मेरे कदों जो वाजी भी आगे नहीं करी मेरे मुंह चो। समझ नहीं आ रही कि मामला तो है कि ओए इधर इधर रखता का मेरे इधर 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 तके किस तरह तके फुल खिल गया ਹੁਣ। चलो बहरहाल ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। इधर तो कोई जगह नहीं गिरे वास्ते, ਫਿਰ ਹੁਣ उधर जाए अपनी मम्मा को, मम्मा कहे मेरे वाल ना लियाना इनू। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਵੇ, ਜਾਓ ਮौज ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਸੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਹਾਂਜੀ नहीं सीरियस ਜਿਹੜੀ मसला ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਚਿੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ऐसे से पागल हुए हैं। मामला तो जिंदगी जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही। इसको मैं पूछ रहा था, इन्होंने पूछ रहे थे आज सारा दिन कि हाँ 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 हाँ, लेकिन आज इन्हें भूख भी नहीं लगी क्योंकि कल मैं बात करनी आपसे कहनी, आप मेरा साथ दें, ये करें। मैं कहा शायद कोई होएगी कोई, फिर 6 महीने बाद इश्क होएगा, मैंने की पता कि नया कांड किया है। बहरहाल कोई गल नहीं, कल परसों जो कोई पर्चा पुर्चा होएगा तो जो उन्होंने पुठा के छितर छुतर मारनगे ते नाले वो बच्ची ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਇੱਥੇ। नहीं, तो वो मैं ऐसे आ ही रही ऐसे थी। वो ऐसे नहीं कहेगी, हैं? वो नहीं कहेगी ऐसे। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, मुझे यकीन है उस पर। ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ। वो नहीं करेगी ऐसे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ में तुमने तो अभी यूनिवर्सिटियां देखी ही नहीं। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐ ਨਾ ਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਚਿੱਤਾ ਖਾਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल नहीं कहेगी यार वो। देखो जी बात इतनी सी है कि अगर आपने कर लिया तो फिर आप संभालें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे हाथ है खाली, कहानी खत्म। ठीक है जी, अब आप देख लो, आप इसके साथ आइए तो क्या हो सकता है। फारक नजर हर चीज तो फारक। अब हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ कर दें। हैं? रिपीट करो कि क्या है? आप बताएं ना। कभी गलती हो गई, माफ कर दें आप। नहीं नहीं है, मेरे आवाज कुछ पिछानी लग रही है कि ਪਛਾਣੀ ਭਜਾਣੀ ਕੀ कितो ਮਤਲਬ? बचाने लग रही। पिछानी लग रही है मेरे आवाज। नहीं, पिछानी- रिपीट कराओ, रिपीट कराओ जरा।
बोलो मैं कह रही हूँ मेरे से गलती हो गई है माफ नहीं है आवाज बदली है नहीं नहीं ये कोई चक्कर है नहीं 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 कोई सीन है नहीं कोई चक्कर है नहीं 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 कोई चक्कर नहीं 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 कोई ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਕਾਲਾ ਬੁਲਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ मैं तो कहा बता रहा पता चल यार जाएगा क्यों ना बता दो नहीं नहीं कोई चक्कर है दोबारा बुलाई जरा सेम लफ्ज दोबारा बुलाई जरा बोली जरा मैं बस ये कह रही हूँ माफ कर दे ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਚ ਕਰ ਓਏ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ दस दिन ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਕੀ यार कुछ नहीं किया नकाह ही किया मैंने ਨਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ यार बैठो तो सही नहीं बैठो नहीं है मेरे को चक्कर लग रहा है चक्कर बैठ चक्कर लग रहा है यार नहीं नहीं। चलो आप जाओ मैं आपसे बाद में बात पीछे जाओ जो नहीं है इधर वाला थे वाला जाओ जो नहीं जाओ जो नहीं ये तो समझ नहीं आ रही ए मेरे को अपनी लग रही है ठीक हाँ कोई अपनी लग रही ओ यार ये भी अपनी जाहिर बात है अपनी होगी मैं नकाह पति नहीं होगी मगर वाली बात हो गई नहीं 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 निकाह से लेकर इधर हसन आपने कहा था निकाह नहीं उतारना हाँ मैंने कहा उसका नकाह नहीं होना बैठो मेरी अपनी हो रहा है मेरा खानदान में बकवास ना करो तो तुम समझ नहीं आ रही किसी चीज की लो ओदी आवाज तो पहचानो मैं आवाज पहचान लेती है कौन है तो नहीं पता ਨਹੀਂ फातिमा है केड़ी फातिमा फातिमा है फातिमा फातिमा कौन आ गई उन लोग की बता 100% फातिमा है फातिमा है फातिमा 100% फातिमा है मतलब ला थानू पता ही चल रहा और नहीं पागल हो जाके वे प्लान करेगा लो जाओ शर्ट ला लो जाके वे लो फातिमा ही निकालो अपना हसन आपको निकाल। पता है मैं किसी के सामने हाँ, निकाह नहीं उतारती नहीं उतारती। 100% फातिमा नहीं है यार 200% फातिमा भाई यार अच्छा, एरा साडे कौन? रंगबाजी कर रहे साडे रंगबाजी कर रहे रंगबाजी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ देख लो उनको निकाल थले करे बोली बजा चल हसन निकाह करा के आप तो मेरे चपेड़ा खा के मैं तेरी वो कुत्ते वाली करांगा फिर तूने याद रखी चलो चलो मैं 2 मिनट ही कहना 2 मिनट को निकाल उतारो नीचे करो हसन यार उसने नहीं उतारना क्यों नहीं उतारना बकवास ना अब मेरे से बात करो सारे नहीं ओदी आवाज ही पछान तू सेने तू ओ तो आवाज ही पछान जा रही तो ये क्या था हैं ए ते निकाह ए शकला निकाह निकाल वाली शकला नहीं क्या तू सर पागल था मैं सुबह का प्लान किया देना एंटी मुस्लिम लेके देखो कैसा लगा मेरा प्रैंक आज मैंने पूरी फैमिली के साथ प्रैंक किया सबके साथ सानू फुद्दू बनाना आसान काम नहीं है सानू फुद्दू बनाना है बच्चा कल का बच्चा सानू फुद्दू बनाएगा किसके साथ नहीं किया हाँ इसी बकायदा थोड़ा फोन सा फायदा हो जाएगा ऐसा फोन सुबह का पागल किया इसने हमें ओह मेरे पूरे खानदान को मैंने हिला दिया एक दफा एक साल ला सकता तू साल ला सकता उसने भी चला लिया जी तो जनाब अली ऐसा है कि ये 2 लोगों को इस आदमी ने बेवकूफ बना लिया लेकिन हमको बेवकूफ बनाना आसान काम नहीं राजा बाबू अच्छा मुझे मेरी ये बात सुनो 2 चपेड़ों का कमाल हुआ इसको ऐसे नहीं पड़ी वरना ये बोल देता नहीं नहीं मुझे जो है ना मुझे इन लोगों को सबको बेवकूफ बना सकता था मैंने इतना था लेकिन मैं यही था कि चाचू जल्दी ना आ जाए जल्दी ना आ जाए जल्दी ना आ जाए जब तक मम्मा जी को फोन कर यापो को फोन कर सबको फोन इसलिए मैं दिलो कर वो बड़ा बहुत ज्यादा शुगर लगा बड़ा उनको बताया हाँ, नहीं मैं किसी को बता अब मैं घर जाऊंगा मम्मा जी की गालियां सुन रही बता दूंगा प्रैंक है तो जनाब अली ऐसा है कि आप लोगों के लिए हम लोग इस तरह की चीजें आपको के सामने प्रेजेंट करें ताकि आप लोग खुश हो सकें मेरे ख्याल से 2 दिन से आप ट्विस्ट में होंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ किस तरह हुआ निकली बहुत शौक अच्छा मैं हैरान हूँ कि आपसे फातिमा की बात पहचानी गई देखिए वो बोली नहीं से वो तो बोली ही नहीं चुप थी तुमने अच्छा। बुलवाया जो बुलवाया हमने तो कुछ भी नहीं कहा लो जी वो कह रहा जी मेरा गाल करो और ना तो जब आप उससे बात पकड़े जाना था मैं मुझे नहीं पता कहना नहीं क्या मेरे ना करो जानी पहचानी आप लोग यहाँ से दाल गालें कि हसन अगर बंदे ने इन्होंने बेवकूफ बना दिया दसो हैं तो पीछे की रह गया ले लो की रह गया पीछे वो मैं कहता हूँ ना मैं अभी नहीं कहता चिड़ी बेचारी की करे ठंडा पड़ी भी मैंने है जी जनाब बात ये है कि आपको कैसा लगा ये मतलब ब्लॉग पसंद आया आपको बहरहाल ये सारा जो भी था जैसा भी था एक मजाक नेचुरल ही हाँ। बना रहा था लेकिन हम लोगों ने कंटेंट बनाया मतलब
बीच में था नेचुरल, कुछ कुछ वो था। आप ये लोग ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अच्छा लगा तो आप लोग अच्छे कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोगों की इस काविश को आगे आगे आपके लिए हम अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर ब्लॉग लेके आते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अब अपना कंटेंट लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और आगे 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 आपको ये जो मेरे 3 जिगर जानम्स हैं आपके सामने आते रहेंगे। तो जनाब अली ऐसा करते हैं कि काफी दिन हो गए आपके सामने हम लोगों ने कोई नसीहत नहीं रखी, लेकिन आज नसीहत से पहले हमारी फैसलाबाद वाली सिस्टर है, उन्होंने कहा कि आप 2-3 लोग मुझे हल्का हल्का छोटा फुल्का फुल्का सा गाना भी सुनाया करो बीच में, जो कि शाकश 2 दिन से पेट पड़ के बैठी, उसने गाना सुनाना है उनकी फरमाइश पे। तो कौन सा गाना है आपका? मैं क्या तो नहीं हूँ, बाजी बता रही थी, तो कौन सा था? लो जी टाइम पर भूल गया। चलो दूसरा गाना मुझे याद है, पहला नहीं याद। बाजी ने 3 गाने बताए थे। कौन सा? लो जी। वो तो एक गाना सुना सकती हूँ। गोना मैं भी साथ से करूँ। मैडम नूरजहां का गाना है वो। ओहो, अच्छा तो अच्छा बहुत- गा के उन्होंने सुनाया, ऊपर से कह रही कि स्पीकर तो नहीं होते, मैं तो बैठा कह रही नहीं स्पीकर तो नहीं आ रहे, उन्होंने बेवकूफ नहीं जा रही। अच्छा 2 गाने तो बाद में सुनाऊंगी, एक सुना दे थोड़ा सा याद है मुझे। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों अच्छा मैं तेरी लहर मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। ये था गाना। माशाल्लाह वेरी गुड मैडम नूरजहां की जो गजलें हैं, जो मेरे ख्याल से ये फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा हुआ है, तो बड़ा ही खूबसूरत किस्म की ये गज़ल अगर आप सुनेंगे तो, अगर मैडम को सुनने वाले बहुत से लोग होंगे तो उनमें उनकी बहुत अच्छी गज़लें भी हैं। जैसे मेहदी हसन साहब की बहुत अच्छी बेहतरीन किस्म की गज़लें हैं, बहुत सारी गज़लें हैं। अस्मा बेग ने मुझे बोला था कि आपने वो वाला सॉन्ग गाना है, तो मैं ज़रा मोमेंटम में आके सॉन्ग गाता हूँ। इस तरह से इस मोमेंटम में मैं सॉन्ग नहीं गा देता, और बाजी भी शौक में है। आयो आयो वापस आयो, कुछ नहीं है, आयो आयो वापस। मैंने बेफालतू बड़ी चपेड़े खाई, लेकिन मैं पक्का था बड़े बड़े ठुड्डे पहले मैं सब सिर बाजी अभी तक शौक में है कि ऐने की कीता की नहीं कीता, तो वो भी तो परेशान है। आयो वापस, कुछ नहीं है। आयो आयो आ गए 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 आ गए। और जनाब अली ऐसा है कि नसीहतें इन लोगों की अब आप सुन लें। 3 नसीहतें 3 दिग्गज लोग करेंगे आपको, अगे अल्लाह जाने तुम अमल कर दे कि नहीं कर दे। बहरहाल एक और रिक्वेस्ट ये है कि जो व्लॉग है ना उसको स्किप करके ना देखा करें, पूरा दिखा करें व्लॉग। आप लोगों के लिए मेहनत करके बेचारे चिन्ना खाता हाँ है। जी। तो बहरहाल बाकी करेंगी नसीहत सबसे पहले आज शाकश। तो मेरी नसीहत आज के इस प्रोग्राम के हवाले से है कि जो बच्चियां या बच्चे ये ऐसे कदम उठाते हैं कि माँ बाप के बगैर शादियां कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, ठीक है, उन्होंने आपको दुनिया में लेके आए हैं, आप पे उन्होंने इतनी मेहनत की थी, आप इस तरह उनको धोखा नहीं दे सकते। तो जो बच्चे बच्चियां जो भी मसला अपने माँ बाप बहन भाइयों से डिस्कस करें, उसके बाद कोई फैसला लें। कभी गलती से भी आपने ये कदम नहीं उठाना, मेरी तो ये नसीहत है बच्चियों को भी और बच्चों को भी। और आप मेरी तो नसीहत ये है कि कभी भी किसी को इतना शौक ना करो कि वो बेचारा अंगुष्ठे बदलना हो। सही बात है, मैं खुद परेशान हो गई इतनी। अब आइंदा से ये होगा कभी किसी की बात पर यकीन नहीं करें। आदिल साहिब, नसीहत मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो शो ऑफ करके ना हेल्प किया करें। उसकी जो है मतलब पर्दा ही रहने दिया। किसी की आप मदद मांग करते हैं तो अल्लाह ताला उसी से खुश होता है जो आप किसी का मतलब पर्दा रख के मदद करें। अगर आपने शो ऑफ करके मदद किया, वो मदद आपकी जाया है। लेकिन नेकी करो पर दूसरे हाथ को भी ना पता चले, नेकी का दरिया में डाल, ठीक है। मतलब ऐसे काम करो हाँ, एक हाथ से दूसरे को दूसरे भी को पता चले। सही तो बात। जनाब अली 3 दिग्गज लोगों की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। तो हमेशा जो मैं फैमिली सिस्टम पे एक बात करता होता हूँ, इसीलिए मैं करता होता हूँ कि फैमिली सिस्टम जो होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। फूफियाँ, चाचे, दादे, दादियाँ, तो बड़ा एक खूबसूरत किस्म का गुलदस्ता बनता है ऐसे ना, मतलब तरह तरह के फूल उसमें लगे होते हैं, तो बड़ी खूबसूरती यूनिटी होती है। एक अकेला फूल पकड़ के देखें उसकी पत्तियाँ जल्दी झड़ जाती हैं। जब एक गुलदस्ते में आ जाती है ना चीज़, उसके इर्द गिर्द एक सॉलिड किस्म का वो होता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अपनी कोशिश यही है, पैगाम अपना यही है कि फैमिली सिस्टम को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपने आप को मारना पड़ता है उसमें, लेकिन आप निखर के बहुत अच्छी तरह सामने आते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहता कि दूसरी साइड से भी जो बात है, दोनों तरफ से बैलेंस होनी चाहिए। बंदे को और बंदी को दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए और बैलेंस करके चलना चाहिए। इससे खूबसूरती बढ़ती है और दिलों में इज्जतें बढ़ती हैं और रिश्तों
की बाउंडिंग स्ट्रांग होती है। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वाला हमारा प्रॉन्ग किस्म का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो आप लोगों ने क्या करना है? यार पे कमेंट्स करना है और लाइक करना है। और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि खान फैमिलीज की वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके और सबसे पहले आप उसको देखकर लुत्फानंदोज हो सकें। जनाब अली जो बाहर ओवरसीज हमारे हैं उन सबको सलूट है, सलाम है, रिस्पेक्ट है उनको दिल से, जो लोग कमेंट्स करते हैं और अपना कीमती टाइम निकालकर हमारी वीडियोस देखते हैं। और जो माशाल्लाह लाहौर या पाकिस्तान में है, लाहौर में है, जिस भी सिटी में है, जहां से भी हमें अपना प्यार देते हैं उन लोगों को भी सलूट है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। इंशाल्लाह खान फैमिली आपके साथ ऐसे ही रहेगी। आज हम अगर 10 पे हैं तो अगर अल्लाह पाक ने हमें 1 मिलियन पे पहुंचाया तो हम लोगों को इंशाल्लाह आप ऐसा ही पाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा एक है कि मिट्टी ना लगे हैं, मिट्टी चले जाना है, मिट्टी से बैठने वाले बंदे हैं। तो जनाब अली जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और इस उम्मीद के साथ बढ़ते रहे। जिंदगी जो है बढ़ते रहे, हमारे चैनल को बढ़ाते रहे और ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, मेहरबानी हो जाएगी। ये मेरा मैसेज आपके लिए आज ये है। आप लोग हमारे व्लॉग नहीं देख रहे, मुझे गुस्सा है इस बात पे। जिंदगी चलने का नाम है और जिंदगी चलती ही रहेगी, ये चलती रहेगी, किसी के आने और जाने से रुकेगी नहीं। थोड़ा सा फर्क पड़ता है लेकिन ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसी का नाम जिंदगी है। तो इस उम्मीद के साथ कि कल दोबारा आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।